Hello students, welcome back. Today we'll start our class with question number 4 of our exercise 10.4. So let's start. If a line intersects two concentric circles with centers O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो साबित कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है. चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? सकेंद्रीय वृत्त माने क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स टू और मोर सर्कल्स. यहाँ पे दो मैंने ड्रॉ किया है, या चार या पांच सर्कल भी हो, लेकिन their centers will be same. सभी का केंद्र उभयनिष्ठ हो, इन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या सकेंद्रीय वृत्त. ओके बच्चों, सो we've got here two concentric circles and the center is O, and what else is given? A line is intersecting both the circles. A line is intersecting both the circles at which points? At A, at B, at C and at D. Okay, so here we are getting 4 points A, B, C and D, and what you have to prove? You have to prove that this part AB is equal to CD. Okay children, now here how will we solve it? We need to draw a perpendicular. Okay, we'll draw a perpendicular from here this way, OM. Okay, so in construction, what would you write? You'll write draw OM perpendicular to, we'll write BC, which implies, we can write which implies OM is perpendicular to which line? AD also. Isn't it children? OM जो है दोनों ही लाइन के लिए, चाहे वो BC हो चाहे वो AD हो, दोनों के लिए ही लंब है. ठीक, ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन, रचना. नाउ प्रूफ. सिंस OM इज परपेंडिकुलर, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन दैट इज BC, हम देख सकते हैं इस वृत्त के लिए ये जो BC है ये एक जीवा है, इट्स अ कॉर्ड, isn't it? So if this is perpendicular, this will divide the chord into two equal parts according to our theorem, isn't it? What was the theorem? Perpendicular from the center bisects the chord. एक लंब जो हम केंद्र से जीवा की ओर खींचे वो उस जीवा को समद्विभाजित करता है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये लंब है तो हम कह सकते हैं BM is equal to CM. ओके, BM is equal to CM. इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. और ये क्यों आया? What is the reason? You have to write in the bracket. What is it? You will write perpendicular from the center bisects the chord. Okay children, this is our theorem. Now again we can see here that OM is perpendicular to this line also. AD के लिए भी लंब है, तो क्या होगा? Since OM is perpendicular to this line that is AD, what do we have? We will have the second part, that is this AM is equal to DM. Again the same theorem. So what is it? AM is equal to DM. And again here you will write the same theorem, that is this. Okay, this is your equation number 2. You've got two equations now. Now, यदि इस लाइन से हम इस लाइन को माइनस कर देते हैं तो आपको AB आ गया. सेम वे इस पार्ट से यदि हम इस पार्ट को निकाल देते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल गया? CD मिल गया. तो हमें करना क्या है? हमें दोनों इक्वेशंस को माइनस करना होगा. subtracting equation 1
from equation 2. Okay children, now what is your equation number 2? That is this. So am minus क्या आएगा? equation number 1 का LHS, that is bm, that is equal to dm minus cm. ठीक, अब देखिए am माइनस bm, ये आपका am है, उसमें से आप क्या निकालने जा रहे हैं? bm. bm को निकाल दिया तो आपको क्या बचा यहाँ पर? ab. यहां बच गया आपका ab और यहां पर पूरा dm है, dm से आपने निकाल दिया cm, तो आपका क्या बचा यहां पर? cd. This is your cd and we got our answer, isn't it? So we'll write hence proved. I'm sure you don't require a second explanation for it children. हम सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं. रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है. यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए. So children, here a park is given to you. A circular park, एक वृत्तीय पार्क आपको दिया है और 3 लड़कियां जिसके नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप, वे इस बॉर्डर में खड़े होकर खेल रही हैं बॉल फेंक कर. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर आपका रेशमा खड़ा है, यहां पे सलमा और यहां पे आपका मनदीप खड़ी है. ठीक है, ओके. आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि द सर्कल, जो पार्क है वो कितना, आपका त्रिज्या कितना है? आपका 5 मीटर. कौन कौन से है वो? आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स है तो हम सभी को मिला लेते हैं. O R O S O M, ये क्या है? रेडियस 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर. तो हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे O R इज इक्वल टू O S इज इक्वल टू O M. कितना है आपका? 5 मीटर. ओके, उसके अलावा आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेशमा सलमा को बॉल फेंक रही है, बॉल फेंक रही है और सलमा जो है मनदीप को बॉल फेंक रही है और रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी सेम है, यानी कि 6 मीटर. ये भी आपको दिया हुआ है 6 मीटर. तो हम यहां लिखेंगे RS is equal to SM is equal to 6 meter. So these two are given to you in the question. आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है ये दूरी. Okay children, this should be straight. Okay, let this point be M. आपको फाइंड आउट करना, sorry this is not M, let this be C because M is already here. Let's take C. So we have to find the length of RM, यानी हमें फाइंड करना है RM. Okay children, now if we have to find this distance, first we will find RC. Okay, अब RC फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे. तो हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा. हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पर O, एक लाइन परपेंडिकुलर जो कि है A, OA. तो हम यहां लिखेंगे ड्रॉ OA perpendicular to RS. This is your construction because we are going to use this triangle to get the value. Okay children, अब यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? We are going to use something that you have learned in your class 8. क्लास 8 में आपने सीखा होगा, ये एक ट्राइंगल है. सपोज कीजिए इसका विड्थ है 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर है यहाँ पर जिसका मेजर है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी आपका एक
परपेंडिकुलर है जिसका लेंथ आपको ज्ञात करना है. You have to find the measure of this altitude. Okay, so what did you do in class 8? Do you remember? You found the area of this triangle with the help of this altitude and this base. What is the formula of area of a triangle? Area is equal to half into base into height, है ना. यहां पर बेस क्या है आपका? ये आपका आधार है, तो ये आधार है, बेस है आपका 4, ये हाइट है आपका 2, यानी आपको सब मालूम है तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा. करेक्ट. अगेन हम दूसरा तरीका से इस सेम डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे. कैसे? यहां पर ये आपका ऑल्टीट्यूड है, ये आपका बेस है, लेकिन एरिया तो सेम होगा. तब हम क्या करेंगे? फिर से एरिया करेंगे. हाफ इंटू, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये आपको नहीं पता है, और ये है आपका 10, तो आपको ये वाला मिल जाएगा. एरिया की जगह पर आप क्या डालेंगे? ये जो आंसर आता है आपको, ये आप यहां पे डालेंगे. डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन व्हाट यू हैव डन इन क्लास 8? The same method we are going to use in our question. Okay, so let's start. So we have drawn a perpendicular over here. So now you know, in this triangle, this is the perpendicular and this is the base. Okay, children. If you have to find this, what is the formula? Half into base into height. Half into base, you know, it's 6 meter. But what about the height? You don't know the height. So first, we'll find the height. How? We will take the small triangle. Okay? This is 5. This also you will get. This you can find by Pythagoras theorem. ठीक है? तो सबसे पहले इसका मेजर कितना होगा आपका? ये आपका परपेंडिकुलर है ना? अगर ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड क्या होगा? बाइसेक्ट हो जाएगा. So we'll write here, since OA is perpendicular to RS, we have RA is equal to AS is equal to 3 meter, है ना? ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा तो दोनों का बराबर होगा. ये पूरा 6 है, ये 3 है और ये आपका 3 है. ठीक है. और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? Perpendicular from the center bisects the chord. Okay children. Now we are going to take this small triangle ताकि हम ये find out कर सके. So in triangle OAR by Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, है ना? कर्ण का स्क्वायर is equal to लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर. तो यहां पर आपका इस ट्रायंगल में ये आपका कितना है? 5. तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, h square is equal to p square plus b square, which implies आपका h क्या है यहां पर? 5. 5 square is equal to, this is 3 square plus OA square. Right children? Let's solve it. What will we have? 25 is equal to 9 plus OA square, which implies OA square is equal to, this 9 will come this side, 25 minus 9, that is equal to, 25 minus 9 is 16, which implies OA is equal to, when the square goes to the other side, it will become square root. So this becomes root of 16, which implies OA is equal to, what is root of 16? Root of 16 is 4. 4 4s are 16, right? So this is 4 meter. You've got OA. OA मिल गया आपको. अब हम find out करेंगे the area of this triangle, of triangle ORS. Area of triangle ORS is equal to half into base into height. That is half into, यहां पर हमारा बेस कौन सा है? आपका आधार क्या है? ये है, यानी कि RS. पहले हम RS लिख देते हैं यहां पर, RS into आपका हाइट कौन सा है? ये, यानी कि OA.
Okay, now let's substitute the values into what is RS? RS का वैल्यू है आपका 6 और OA का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 4. So 6 meter into OA is 4 meter. 2 ones are 2 threes are 4 threes are 12 meter square. This is area of ORS. ठीक है बच्चों, हमें एरिया मिल चुका है. अब यहां पे देखिए, सेम ट्राइंगल हम यूज करने जा रहे हैं और हम ये देखेंगे क्या आरसी इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर है, तब हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक, अब यहां पे देखिए चिल्ड्रन, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ORSM, दिस इज अ काइट, यानी पतंग. क्यों पतंग है? हमने जब क्वाड्रिलेटरल सीखा, क्या सीखा था हमने? पतंग किसे कहते हैं? जिसके आसन भुजाएं बराबर हो. A figure in a quadrilateral in which the adjacent sides are equal is called a kite. यहाँ पे देखिए, ये दोनों आपके इक्वल हैं और यहाँ पर ये दोनों आपके इक्वल हैं, तो ये बन गए आपके काइट. और यदि ये काइट है, what is the property of a kite? That both the diagonals of the kite bisect each other at right angles. दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, है ना? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? Now ORSM is a kite. और ब्रैकेट में लिखेंगे the reason why it is a kite. OR, since OR is equal to OM, comma, RS is equal to SM. इसलिए वो एक पतंग है. ठीक है, अब ये पतंग है तो हम क्या लिखेंगे? Implies diagonals bisect each other at right angles. बाइसेक्ट भी करेगा और राइट एंगल में बाइसेक्ट करेगा. तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? देखिए, वी विल गेट RC is perpendicular to OC. तो implies RC is perpendicular to OS, and we can also say that RC is equal to MC. RC is equal to MC. Okay children, परपेंडिकुलर भी आ गया आपका और दोनों पार्ट्स आपका इक्वल भी आ गया. ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे? We will find again the area of ORS with the help of this perpendicular and this base. ठीक है children? Again, area of ORS is equal to again half into base into height. ठीक है, half into, अब हमारा बेस कौन सा है? ये है, यानी कि OS into, अब आपका हाइट कौन सा है? RC. ठीक है बच्चों, अब दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू आपका OS कितना है? दिस इज योर OS. OS आपको पता है कि वो आपका रेडियस है, यानी कि 5 मीटर. सो दिस इज योर 5 मीटर एंड RC तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको एरिया पता है क्योंकि आप ऑलरेडी यहां फाइंड आउट कर चुके हैं. एरिया ऑफ ORS इज 12 मीटर स्क्वायर. तो वी आर गोइंग टू राइट हियर 12 मीटर स्क्वायर. ओके फाइन बच्चों, अब इसे हम सॉल्व करेंगे. विल ब्रिंग 2 हियर, ऑल द नंबर्स विल ब्रिंग दिस साइड. सो कैसे आएगा? 2 मीटर स्क्वायर, ये 2 यहां आ जाएगा इंटू 2, ये 5 आपका नीचे आ जाएगा, है ना? दैट इज इक्वल टू RC. नाउ विल सॉल्व इट. 1 मीटर और 1 मीटर कट चुका है. 12 2s is 24 meter by 5 RC, which implies RC is equal to 5 4s are 20.8 meter. ये आया आपका RC. Okay fine students, you've got this RC now. अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने यहाँ लिख दिया है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं RM. Therefore RM is equal to,
we'll write RC plus MC. That is RC plus MC की जगह पर आप फिर से RC लिख सकते हैं because both are equal. That is equal to 4.8 meter plus 4.8 meter. That is equal to, when you solve it, you are getting 9.6 meter. This is your RM and this is your required answer. समझ आया बच्चों? मैं और एक बार रफली आपको समझा देती हूँ. It is given Reshma, Salma and Mandeep are standing in a circular park and they are playing balls. They are passing balls. ठीक है? The radius of the circle is 5 meter, right? The distance between Reshma and Salma and Mandeep are both same. That is 6 meter. You have to find the distance between Reshma and Mandeep. ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें RC का वैल्यू फाइंड आउट करना है. RC का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम ये ट्राइंगल लेने जा रहे हैं. ओके? उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि है OA परपेंडिकुलर टू RS. अब अगर OA परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि RA इज इक्वल टू SA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बाइसेक्ट करेगा, है ना? 3 मीटर. उसके बाद हमने क्या किया? We took the small triangle to find the value of OA by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से हमने इसे 5 लिया, इसे 3 लिया और हमें OA मिला 4 meter. Okay? After getting this distance, now you can find the area of this triangle, half into base into height. Okay? Using half into base into height, you got the area of this triangle as 12 meter square. Again, you can find the area of the same triangle by the second set of height and the base. Okay, उसके लिए हमने प्रूव किया कि ये एक काइट है. क्यों काइट है? क्योंकि उनके एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हैं. ठीक? और यदि ये काइट है तो both the diagonals will bisect each other at right angles. The right angle, which means we got this is perpendicular to this and these both are equal to each other. है ना? फिर हमने फिर से ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड एंड दिस बेस, एंड देन वी सब्स्टिट्यूटेड द एरिया. वी गॉट द वैल्यू ऑफ RC and since these both are equal, we got the value of RM as 9.6 meter. Now I hope this question is clear to children. Let's move on to question number 6. This is your question number 6 children. 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है. 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है. प्रत्येक फोन को डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए. So children, here again there is another circular park and here there are 3 boys who are sitting on the circumference of the park and they've got telephone toys in their hands which is connected with a string and they are talking to each other. Okay children? Now they are sitting at equal distance. Because it is equal distance, here it is not possible. You will do it this way. यहाँ पे आपका अंकुर बैठा है, यहाँ पर आपका सैयद है और यहाँ पर आपका डेविड है. Because they are at equal distance. तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं. Equal distances को equal distance पर है. ओके? तो फर्स्ट में हमें क्या दिया है कि AS is equal to SD is equal to AD. ठीक है? And the radius of the park is 20 meter. ये जो आपका रेडियस है ये आपका 20 मीटर है. So here you will write radius यानी त्रिज्या कितना है आपका 20 meter. You have to find the length of the string the boys are using of each string. यानी कि इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है. तो तीनों तो इक्वल है तो आपको कोई भी एक फाइंड आउट करने से काफी होगा. तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं AS. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं AS. ओके बच्चों? तो क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं तो हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत है. हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो O से पास होगा. ठीक? दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज योर M. ओके? वी विल राइट ड्रॉ OAM perpendicular to SD passing through O. Okay?
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM to SD passing through O. अब हमें एक ट्राइंगल मिल चुका है तो हम AS का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन सी दैट दिस इज अ राइट ट्राइंगल, राइट. राइट ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और आप AS कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ना आप AS का मेजर जानते हैं, ना आप SM का वैल्यू जानते हैं और ना ही टोटल AM का, क्योंकि AO तो आपको पता है वो रेडियस है तो वो आपका 20 मीटर है, लेकिन बाकी आपको नहीं पता है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि दिस स्मॉल एरिया इज X. ओके, विल टेक लेट SM इज इक्वल टू X. ओके, नाउ अगर ये X है तो आपका A भी X होगा, क्यों X होगा, क्योंकि OM जो है परपेंडिकुलर है हमारे कॉर्ड के ऊपर. तो हम लिखेंगे सिंस OM is perpendicular to SD, तो हमें क्या मिलेगा, SM is equal to DM. And what is the reason? Perpendicular from the center bisects the chord. Isn't it? Okay. So हमें ये दोनों इक्वल आ चुका है. Which implies SM is ये दोनों DM दोनों का वैल्यू कितना हो गया आपका X. ये भी आपका X हो गया, ये भी आपका X हो गया, यानी कि आपका टोटल SD क्या हो गया, X प्लस X 2X. तो ये लाइन अगर 2X है, ये भी आपका 2X है और ये भी आपका 2X है ना. तो हम लिखेंगे which implies AS is equal to SD is equal to AD. आपका आ गया 2X. फाइन स्टूडेंट्स, ये 2X आ गया. अब हम लेंगे हमारा ये ट्रायंगल. ओके, अब आपको अगर X का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको ये छोटा ट्रायंगल काफी है 20 मीटर X और OM, लेकिन आपको OM नहीं पता है. तो इसलिए हम पहले AM कैलकुलेट करेंगे, उसमें से AO को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा आपका OM. ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक दिस ट्रायंगल दैट इज ASM. In triangle ASM by Pythagoras theorem, हमारा A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर है ना. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हमारा AS कितना है 2X, हमने अभी भी लिखा. सो दिस इज योर 2X स्क्वायर. AM स्क्वायर आपको नहीं पता है और SM आपका कितना है, ये दैट इज X. दिस इज योर X स्क्वायर which implies now we are going to solve it. 2x into 2x, 2 2s are 4, x into x, x square. तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इंप्लाइज आपका AM स्क्वायर क्या होगा, ये आपका x स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंप्लाइज AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंप्लाइज AM इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा वो स्क्वायर रूट. तो दिस बिकम्स योर square root of 3x square और that implies AM is equal to, अब रूट 3 में तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं, लेकिन जब x स्क्वायर के ऊपर में रूट आएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर के ऊपर जब रूट आएगा ये दोनों कैंसिल हो जाता है ना, एंड इट बिकम्स x. वो रूट से बाहर निकल गया. ओके, दिस थिंग्स यू हैव लर्नड इन क्लास 8 चिल्ड्रन. ओके, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ AM. ठीक, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं x का वैल्यू ये छोटा ट्राइंगल लेकर. ठीक है, तो इन ट्राइंगल OSM अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम we'll get OS square is equal to SM square प्लस आपका ये छोटा वाला दैट इज OM square. ओके,
आपका OS कितना है, देखिए यहाँ पर OS कितना है आपका रेडियस है, दैट मीन्स 20. सो दिस इज 20 स्क्वायर इज इक्वल टू SM इज x स्क्वायर प्लस आपका OM कितना होगा, OM की जगह पर आप लिखेंगे AM माइनस AO, यहां पे लिखेंगे AM माइनस AO the whole square. Okay children, this is 400, this is x square plus, अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर a माइनस b the whole square के फॉर्म में है, this is your a, this is your b, तो am माइनस b फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं. am कितना है आपका, am का वैल्यू आया आपका √3x, तो यहां पर √3x माइनस व्हाट इज योर AO देखिए यहां से यहां है, दिस इज योर रेडियस यानी कि 20, तो यहां पे आएगा 20 द होल स्क्वायर. ओके चिल्ड्रन, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा बाय a माइनस बी द होल स्क्वायर. a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है आपका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. वी आर गोइंग टू ओपन इट चिल्ड्रन. नाउ लेट्स सॉल्व इट चिल्ड्रन. 400 is equal to x square plus a minus b the whole square. So your a is this a square minus 2ab minus 2 into your a is this and b is this. So √3x into 20. Okay, 2ab plus b square. Your b is 20. हो गया आपका फॉर्मूला a square minus 2ab plus b square. Now you have to solve it. Here 400 is equal to x square plus what is √3x into √3x? √3x into √3x. What is √3 into √3? The root goes off and your answer comes 3. x into x is x square. Okay. यहाँ पे आएगा आपका 3x square. यहाँ पर 2 into 20 is 40. √3x and here it is plus 400. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर भी प्लस 400 है, यहां पर भी प्लस 400 है. क्या हम दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि जब आप ये प्लस 400 को यहां पे लेके जाएंगे वो बन जाएगा आपका माइनस 400, तो डायरेक्टली हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं. सो बोथ द 400 गेट्स कैंसल्ड. ओके, लेट्स टेक दिस पार्ट दिस साइड बिकॉज इट्स नेगेटिव. सो 40 √3x is equal to what is x square plus 3x square. यहां पर 1 है यानी कि हो गया आपका 4x square. फाइन स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर एक x है, यहां पर 2x है. x इंटू x होता है ना, x स्क्वायर माने देखिए x स्क्वायर माने 2x, तो यहां से हम एक x, यहां से एक x हम काट देते हैं. ओके, तो हमारा क्या आएगा, इंप्लाइज x को यहां लेके आते हैं, x इज इक्वल टू 40 √3. This 4 will come down, isn't it? By 4. ठीक है? Now when you solve it, you are getting 4 ones are 4, 4 tens are 40, that is equal to 10 √3. You've got the value of x. x तो आपको मिल चुका है, देखिए x मिल गया. अब हम इजिली कर सकते हैं हमारा as. आपका as कितना था? 2x. Isn't it children? So we'll write it as, therefore as is equal to 2x, that is 2 into 10 √3, that is equal to 2 times are 20, 20 √3. Okay children, आपका meter, unit is meter, which implies length of each string is 20 √3 meter. And with this I have completed the sum. Okay children, now I have completed your exercise 10.4. Question number 5 and question number 6 is a little complicated children. Though I have explained it to you, but you need to practice it at home children. And with few more theorems, we'll meet in the next class. Till then, keep learning.